Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and you're watching us on Fusion Magazine, and we are back with our drama cup. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक ऑल गुड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाउस एवरीथिंग हमारी स्लो यार. The last 2 days have been very very hectic. रात को कल हम 9 बजे ऑफिस से निकले and just tired. I think मुझे छुट्टी चाहिए. मुझे हॉलीडे चाहिए. I'm so tempted. I'm not joking. I just feel like और पता ये नहीं था बट कल से मुझे हो रहा है मेरा दिल चाह रहा है मैं कहीं चली जाऊं 2 दिन के लिए. शुक्र हाँ. शुक्र ये हो रहा है Yeah, so I'm just let's see. महंगाई बहुत है लेकिन यार टिकट प्राइस so देखो तो I've been trying to tell Rabia that I've been trying to tell Rabia she needs a break and Rabia says no I'm very happy doing this I'm okay doing this I'm fine and then after 3 days I'm like Rabia did you plan something इतना महंगा है I cannot do it it's so हाँ expensive भाई. it's ticket price and yeah Have you seen the ticket prices? आप you want to you look at the ticket. अब फिर सिर्फ टिकट प्राइस तो नहीं, भी रहना भी है, शॉपिंग भी करनी है, खाना पीना भी है. Then you're like अच्छा So भाई ये shopping खा is लो. like this big thing in her. मतलब हाँ. shopping के बगैर holiday नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, So that मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी नहीं जहाँ पे शॉपिंग नहीं हो. मुझे नहीं जाना, सॉरी. फिर तो खाली सूटकेस लेके जाती हो. You take हाँ, an एक empty अच्छा suitcase. सिनेमा हो, सारे अच्छे बड़े ब्रांड्स हो उधर, खाना पीना अच्छा और हलाल हो. ये 2-3 मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी है. और जिस होटल में मैं ठहरू वहां का जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है बुफे, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत वो वैरायटी. अच्छा होना चाहिए. Yeah. सो आई एम So विलिंग I टू live for the breakfast. Yeah. I'm willing to wake up at 6 o'clock and have my breakfast. I just love the variety. मैं बस वहां बैठ के खाते रहो पीते रहो, that kind of thing. I love a good breakfast. और कभी when we're booking as a family and they say, oh, let's look at this Airbnbs में breakfast खुद ही लाएगा. No. I want the breakfast in the morning. I'm not skimming on the breakfast. We are adding because वो होता है ना कि add on कर दें अगर breakfast चाहिए कि नहीं. But Rabia and shopping is like it's another episode. It's another season of whatever famous show you watch. एक दफा मैं कहीं प्लाजा पे या पता नहीं किसी मॉल पे चली गई थी. She doesn't know what happened. हम किसी और काम के हम किसी से मिलने जा रहे थे काम के लिए. एंड राबिया की आंखें जो है ना यूं करके दौड़ रही हैं इधर उधर इधर इधर जा. अच्छा हाँ नहीं नो 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 आई हैव टू स्टॉप आई कांट डू दैट. It was unbelievable the way she was looking at the. So I was thinking of वो जो movie थी ना what is it called? This shopaholic movie मैं नाम भूल रही हूँ. It's I bet you've watched it. There's no way you haven't watched it. Oh, I've seen it. I've seen it. Yeah. So मैंने कहा कि okay, now I know. Anyway, so yes, we have about 7 dramas, I think. लेकिन हम पहले गुफ्तगू शुरू करने से पहले we wanted to talk about this trending topic. Trending भी नहीं कहना चाहिए, unfortunately, but trending in the sense that everyone is talking about it. There are conversations around it, and every morning when we wake up, तो उस पे कोई नई development होने वाली होती है. We are talking about the Feroz Khan and Aliza Sultan case. And उसके ऊपर I think 1st November को उनकी next hearing होगी. Rabia, you want to give a background or do you want me to give a background on it? You can give a background. So in early September, I think it was 4th September, if I've missed the dates, उन लोगों ने I think अपनी divorce finalize की थी. 21st जैसे पे उन्होंने announce किया था that they are divorced. In between that time, somewhere after that, Aliza has been going to court. He has got visitation rights to see his 2 children under strict supervision. This was the court order जो public किया जा रहा है through various social media accounts. And recently जो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा है and people have been talking about it is because Aliza Sultan has actually documented the physical abuse she has been through. We are not even talking about the mental abuse and everything else. And she has given that to the court. So from the court we have found out and उन्होंने तस्वीरें Bruce तस्वीरें भेजी हैं where it is shown that she has been hurt. And also I think there was one of her son, I'm not sure, people have been talking about it. So I think इसलिए कह रही हूँ because there are lots of things going around इसलिए I don't want to be wrong about something. So and after that, a lot of celebrities and well-known people and co-actors who have acted with him have come out and said that they support Aliza Sultan. Last development जो मैंने देखा था कल रात को या आज सुबह को वो ये था कि Iqra Aziz has said she will not act in a play that she was supposed that's in the pipeline and she was supposed to go on air with Feroz Khan. Yeah.
ट्रू ट्रू ट्रू। सो या सो हमें बहुत से मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे, कुछ कह क्यों नहीं रहे। एक बात हम इसका जवाब देंगे, दूसरा हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू मे बी एक्सप्लेन करें ऑन ऑल ऑफ दिस। सो नंबर वन, डोमेस्टिक अब्यूज बहुत ही सैड और बहुत ही दुख की चीज होती है। जो लोग इससे गुजरते हैं, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड द पेन दैट दे गो थ्रू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे सिचुएशन में कोई सही है या गलत है, आप कभी भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा ना एक सोच लिया करें कि थोड़ा सा, मुझे लगता है हमें एहसास और सेंसिटिविटी की जरूरत है। जैसे मैंने बहुत से कमेंट्स अलीजा के अगेंस्ट, अलीजा सुल्तान के अगेंस्ट सुने हैं कि, तो मैं कह रही हूँ एक थोड़ा सा टाइम दे दें, मे बी सिचुएशन आगे आपको क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि डायरेक्टली ये जंप करें कि ये औरत झूठ बोल रही है। इस तरह हम उस विक्टिम, सर्वाइवर और उस इशू को अंडरमाइन करते हैं, और हम उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जजमेंट किसी और के बारे में करने से पहले थोड़ा सा, एंड बीइंग फीमेल्स, मुझे लगता है एक्स्ट्रा कॉशन। एम आई राइट शाजिया और रॉन्ग? डू यू एग्री विद इट? I think you're totally right होता ये राबिया, when we, and especially this is true of Twitter, ठीक है, ट्विटर पे ना एकदम से आप रिएक्ट करते हैं। जब आप ट्विटर पे जाते हैं और आप वो ट्रेंड को क्लिक करते हैं और आप देखते हैं what everyone is saying about this person, you already make up your mind without wanting to make up your mind, because you see evidence or you see some very powerful tweets that you start believing in because they're just so powerful that you know they grip you, and then you say हाँ मुझे कुछ कहना चाहिए इसके ऊपर। So you either share a tweet that you find very gripping or you say something that you want people to resonate with क्योंकि आप इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन शायद आपके पास पूरे फैक्ट्स नहीं हो उस वक्त, शायद आप वो पढ़ रहे हो जो और लोगों ने भी कहीं और से पढ़ के लिख के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो ट्विटर पहले करता था रिसेंटली, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट डू इट नाउ, तो शायद मेरे पास वो नोटिफिकेशन नहीं आता, कि अगर आप कोई कैप्शन पढ़ते हैं किसी आर्टिकल का और आप उसको सीधा शेयर करते हैं, ट्विटर कहता है यू हैव नॉट रेड दिस आर्टिकल, so you should read it before you. So since I have been reading the articles, लेकिन शुरू में मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने कैप्शन पढ़ा था और मैंने उसको डाला, उसने मुझसे, it was a great reminder, I hope they still have it because I go back and read it, and you want to wait a little while, right? You don't अगर आपको शक है, yeah. अगर आपको शक है, इफ यू डोंट बिलीव हर और दैट पर्सन इन दैट एनी सिचुएशन, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, बजाय इसके कि एकदम से उस पे जम करके किसी पे इस तरह का इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत कुछ एट स्टेक होता है, स्पेशली वहां पे जहां आपको पता है कि शायद मेजोरिटी आपके साथ नहीं हो। सो ये बहुत बड़ी, तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है जब मुझे मैसेजेस आए और मैंने बहुत जगह बहुत हार्श स्टेटमेंट्स फ्रॉम फीमेल्स सुनी अगेंस्ट अलीजा सुल्तान। तो मुझे बस ये है, आप चुप रह जाएं, वेट कर लें जब तक कोई और चीज सामने नहीं आ जाती। नाउ कमिंग टू, शुड वी टॉक अबाउट व्हाई वी हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, और शुड वी टॉक अबाउट कि हमारा क्या क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या बात करें पहले? So I think we have responded. I don't think we have not responded. If we didn't put up a picture of Feroz Khan and say that oh we are going to cancel him, yes we haven't done that. आई थिंक शाजिया, आई थिंक पीपल वांटेड कि हम दोनों ने स्पेसिफिकली अपने अकाउंट्स पे क्यों नहीं बात की, और हम दोनों ने इस तरह क्यों नहीं बात की है। सो मैं ये कहना चाहूंगी, एंड शाजिया ने इसमें कुछ ऐड करना हो तो वो कर ले। जैसे शाजिया ने कहा ऑन फ्यूशिया, एक तो हम थोड़ा सा चीजों को समझ के लेके चलते हैं, हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं। हम भी देख रहे थे किस तरीके से सिचुएशन हो रही है, एंड नंबर वन। नंबर टू, हमने स्टार्ट कर दी थी चीजें, आर्टिकल्स भी जा रहे थे, पोस्ट भी जा रही थी, और पोस्ट में डायरेक्टली जरूरी नहीं है कि हम किसी का नाम मेंशन करें तो आपको लगे कि तभी हमने पोस्ट की है। वी हैव स्पेशली हमारी एक पोस्ट थी जिसपे हमने पूछा कि आर्ट और आर्टिस्ट और क्या प्रोफेशन को हम अलग कर सकते हैं। दैट वाज स्पेसिफिकली टू मेक पीपल थिंक, नॉट प्रो फिरोज खान or anyone, it was to make you guys think कि नहीं, artist and profession are connected with you and their personal lives are connected। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का, अल्लाह ना करे, रेप कर दें और हम बोले जी कल को लगा तो फिर ये भी होगा ना कि नहीं ये तो आर्टिस्ट है, इस दो चीजों को अलग रखो। नो, बिकॉज एक गलत चीज तो गलत चीज होती है ना। तो हमने इस तरह की चीजें शुरू की ऑन आवर ओन विद इन थिंग्स फ्यूशिया पे, जो हम शायद मेंशन नहीं करते। वी डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फॉर एग्जांपल हम हब्स को रिव्यू करेंगे, लेकिन शायद हम एक लिमिटेड अंदाज में हब्स को रिव्यू करें। सो यस, हमारी अपनी चीजें, स्टेप्स हो रहे होते हैं जिसके लिए हम कभी कभी जरूरत
हमें नहीं लगता कि हमें पब्लिकली भी ये अनाउंस करना चाहिए, बट हम अलीज़ा सुल्तान के साथ वी हैव ऑल वी फील फॉर हर, एंड हमारी दुआएं उनके लिए कि अल्लाह उनको हिम्मत दे और इस मुश्किल टाइम से गुजारे। एंड इनफैक्ट हमारे पास हब्स की वीडियो थी, हम हब्स के सेट पे गए थे, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैं शाज़िया, आई डोंट नो तुम्हें भी याद है बात या नहीं है, हम ये डिसीजन 1 महीना पहले ले चुके थे। ये चीज अभी आई है 1 से 1.5 महीना पहले, जब अलीज़ा सुल्तान ने पहली दफा किया था दैट वी विल नॉट बी टेकिंग आउट दिस वीडियो। जो हब्स की है, हमारे पास बहुत अच्छी हब्स की वीडियो है जिसमें, एंड आई एम नॉट जोकिंग, उस दिन सेट पे हमने 7 घंटे स्पेंड किए थे। वी I remember that. 2 AM इन द नाइट। मेरे 2 एडिटर्स मनसब एंड हुजैफा बारिश में मोटर बाइक पे वापस गए थे। सो वी हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट because the drama was trending, we felt for the drama, but when all of that happened we decided हम वो वीडियो नहीं करेंगे। So there are things जो हम कर रहे होते हैं, ये अब मुझे नहीं लगता था कि मुझे ये बताने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे टैग करके हो रहा है, तो मुझे लगा ठीक है, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी बड़ा ऑनर है शाजिया कि लोग हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें कुछ बोलना चाहिए। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, और आई एम श्योर ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड फ्यूशा एवरीवन, अल्लाह के बाद आप सबकी, कि आप समझते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट, या हमारी आवाज से फर्क पड़ेगा कि हमें बोलना चाहिए। तो ये सब प्रोसेस था जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि, और हम आगे जाके भी चीजें करते रहेंगे। हम कुछ चीजें शायद सटल करते हैं, कुछ चीजें हम शायद स्ट्रॉन्ग करते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर विद अलीज़े, एंड या आई थिंक बाकी आप हमारे एक्शन से देख लीजिएगा आगे जो कुछ भी होगा, राइट शाजिया? Yes, We need yes. to- I just wanted to say कि हब्स का वीडियो हम नहीं पब्लिश कर रहे हैं, बट we do recognize कि हब्स में और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनका खून पसीना गया है उसके अंदर, एंड वी डोंट वांट टू डिसमिस दैट बिकॉज इट्स नॉट फेयर। तो वी आर रिव्यूइंग हब्स एंड हमने हमारा कल आर्टिकल भी किया था, इंस्टाग्राम पोस्ट भी किया था, एंड फॉर फिरोज खान we are actually posting an update about the situation on Fuchsia magazine every day कि जो लोगों ने रिएक्ट किया है जहां बात, और 1 नवंबर को भी जब हियरिंग होगी हम पोस्ट करेंगे अपडेट। सो इट्स नॉट कि we are shying away from it, we are creating awareness which is actually more important than just saying that oh we side, because people who know him better can write that down. At the end of the day हमारी information भी second third hand information है, and the case is still Still in going the on. hearing. Okay, Yeah. it is still going on, it's running. Secondly, कल हब्स की जो पोस्ट गई थी तो उस पे सिर्फ उष्णा शाह की तस्वीर थी। अब आप ये देखें, एक तो एक साइड पे ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया, सिर्फ उष्णा शाह की तस्वीर थी। फ्रैंकली आई डिड नॉट नो, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड राबिया आई एम वेरी बैड विद इमेजेस बिकॉज आई एम फोकसिंग सो मच ऑन द वर्ड्स कि मैं नोटिस नहीं करती। लेकिन एक साइड पे हमें वो लोग मैसेज करे कि आपने कुछ कहा नहीं, दूसरी साइड पे किसी ने लिखा ट्विटर पे कि आपने फिरोज खान की इमेज नहीं डाली है, हम इसको शेयर नहीं करेंगे या हम नहीं। सो यू नो देयर इज अनदर साइड अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह पीपल आर बैशिंग अलीजा सुल्तान। सो थोड़ा सा हौला हाथ रखिए, थोड़ा सा रुक जाइए, द केस इज गोइंग ऑन, एंड दैट वाज अ सटल वे ऑफ शोइंग व्हाट यू जस्ट सेड कि हम सटली कर रहे हैं। So Where that was we stand, how we stand, we are definitely with Aliza Sultan and all the domestic abuse. yeah. We will never support anybody who's involved in this, and Yeah. unless they are proven innocent. And अगर ये ऐसा हो जाए तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी माफी मांगने के लिए भी, लेकिन एज ऑफ Yeah. नाउ जितना एविडेंस है वो उनके अगेंस्ट ही जा रहा है, फिरोज खान के। एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ नाइंसाफी, जुल्म, या किसी भी किस्म की ऐसी चीज जो किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, वो ख्वाजा सरा हो, वो स्पेशल नीड्स पर्सन हो, किसी की भी राइट्स या उनकी उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट करे या उनकी डिसरिस्पेक्ट करे या उनके राइट्स को करे, हम ऐसा नहीं करते हैं। सो आई होप हमारी तरफ से ये बात क्लियर हो गई हो। Yeah. वी डेफिनेटली आर विद, और अगर आप फ्यूचर को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको पास्ट में भी बहुत सी ऐसी चीजें नजर आएंगी। इट इज अ साइलेंट स्टैंड दैट वी हैव टेकन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, few very clear things. So yes, going forward भी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जितना और कर सकें। जैसे जैसे चीजें और क्लियर होंगी हम और भी ज्यादा बात करेंगे। अभी हमारा फोकस ये भी है कि स्टैंडिंग विद अलीज़े एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अवेयरनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाजिया, आज हमारी इंस्टाग्राम की पोस्ट जा रही है, फॉर मी इट इज सो इम्पोर्टेंट कि यार जब डाइवोर्स हो जाती है, सो अलीज़ा आस्किंग फॉर मेंटेनेंस राइट फॉर हर सेल्फ, हर किड्स। Yeah. दिस थिंग मेड मी थिंक कि यार
शादी कर दी आपने एक लड़की की, 3 साल 4 साल 5 साल उसने गुजार दिए, वो घर पे है, बच्चे पाल रही है, अब उसकी डाइवोर्स हो गई है, खुला हो गई है, वो लेता है, उसके उसकी सिचुएशन क्या है? वेयर डज शी स्टैंड? शी हैज टू अर्न And फाइनेंस। Rabia, probably that's one of the reasons why it took her so long to get या out of it. या With two एग्जैक्टली। children, सो वो यही मेरी, सोच रही होगी ना कि मैं क्या करूंगी, मैं कैसे मैनेज करूंगी और अपने फिर आप घर का। छोटे बच्चों का भी तो ख्याल she रखें, suffered the ट्विंस होते abuse. हैं, शी जस्ट हैड अ डॉटर, फिर आप फाइनेंशियली भी अपने आप को सपोर्ट करें, आप दुनिया की बातें भी सुने, आप जजमेंट भी बर्दाश्त करें। इट्स अ होल बिग इशू एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दैट। I just want you to cap it off कि ये अभी का हमारा नहीं है. Like Rabia said, if you're following, you will see that. लेकिन हमारी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है. I'm not going to name कहाँ, लेकिन जिसमें Rabia was all कि जब एक एक्टर होता है, इन्फ्लुएंसर होता है, then they have a responsibility. और मैंने थोड़ा बहुत फिर भी कहा था कि देखो एक्टर जो है वो एक्टर होता है, थोड़ा सा उसको भी जो है ना अपनी जिंदगी जी लेने का, वो डिफरेंट कॉन्वर्सेशन थी. बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, व्हेन पीपल फॉलो यू बिकॉज दे बिलीव इन यू, बिकॉज दे बिलीव, वो ना चाहते हुए भी लोग आपकी कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत सारी इंस्पायरिंग चीजें होती हैं, राइट, एंड इट्स ब्यूटिफुल एंड यू वांट टू बी लाइक दैट पर्सन. सो ये भी एक चीज है कि आपको फिर अपनी लाइफ को उधर लाना होता है. दैट्स योर चैलेंज as well as doing everything else कि you have to walk the talk. So that's it. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामा का। Okay. So we have Hubs, More Mahara, we have a new drama Agar, we have Behem, we have Kaisi Teri Khud Garzi, then we have Tinke Ka Sahara and Beshi. आपने किससे स्टार्ट करना है? You want to start with Beshi or More Mahara? स्टार्ट विद वैशी। ओके तो वैशी मुझे ये बताएं कि व्हाट इज सोबिया अप टू. मतलब वो वहां भी उनसे कह रही है सीएसएस का एग्जाम दे और कह रही है कि नहीं लेकिन तुम घर पे नहीं रह सकते, और वहां भी वो आंसू बहा रही है उनके साथ. तो विच आई रियली थिंक शी माइट बी ट्राइंग टू प्ले स्मार्ट, बट आई थिंक हर हार्ट इज विद आसिफ. हाँ, सो वो अभी तो उसको खुद रियलाइज नहीं हो रहा, ये बात तुमने सही कही। अब जो मैंने नेक्स्ट किस का प्रोमो देखा है उसमें वो कहती है कि जिस राह पे आसिफ अकेला चल रहा था, अब उस राह पे मैं भी उसके साथ चलना शुरू हो गई हूँ। लेकिन एज ऑफ नाउ शी डजंट रियलाइज कि यस, आसिफ के साथ ही वो ज्यादा अटैच्ड है या उसको इंटरेस्ट है। लेकिन वो अभी स्मार्ट खेल रही है कि वो, क्योंकि देखो उसकी प्रायोरिटी शुरू से बहुत क्लियर की है, वो एक अच्छा फ्यूचर चाहती है, एक अच्छा घर चाहती है, वो कंफर्टेबल लाइफ चाहती है, उसको नहीं रुलना जैसे उसकी बहन बच्चे पैदा किए जा रही है या माँ रुल रही है, उसको नहीं रुलना। तो वो बड़ा उसलिए कह रही है कि अच्छा अगर मुझे अपने कजन से शादी करनी पड़ी तो भाई वो भी अच्छा चाहिए, अगर वो अच्छा चला गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी, वरना आसिफ तो है। लेकिन उसको ये नहीं पता था पिछली 2 किस्तों तक कि आसिफ जो वो सेट स्टेप सन है। और शायद अब आसिफ खुद सोच रहा है ये, नाउ ही इज थिंकिंग, बिकॉज उसने खुद भी सोचा, वो फ्लैशबैक दिखाया कि शी फाउंड आउट कि वो सौतेला है. लेकिन आसिफ का ने भी अपना फास्ट ट्रैक कर लिया है भाई. आसिफ जा रहे हैं 1 साल के, चली गई है आसिफ शायद, आई इसी की थिंक. वजह से जा रहा है बिकॉज यही चाहती है हाँ. उसके लिए। उसकी माँ भी उसे कहती है, उसका दोस्त भी उसे कहते हैं ना कि अगर तुम्हें सोबिया चाहिए तो एक अच्छी जॉब लो और अपनी जिंदगी बनाओ, तो वो इसलिए वो चाह रहा है। सो ये चीज थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग वही बात, आई वांट टू अप्रिशिएट वैशी फॉर द फैक्ट कि देखो वो जिस तरह अब कैसी तेरी खुदगर्जी में ना, वो तो मतलब शमशेर का ऐसा टर्न ओवर दिखाया कि यू लाइक क्या इसका नहीं है, ही स्टिल गेट्स, उसका हाथ पकड़ लेता है जब वो चाय बनाने जा रही होती है, विच इज सो रियलिस्टिक कि भाई जो लोग ऐसे होते हैं वो एक दिन में ऐसे नहीं चेंज हो जाते, उनका एग्रेशन, उनके अंदर की नफरत रहती है एंड इट टेक्स इयर्स फॉर इट टू गो अवे। सो अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने का सोच रही हैं, जाना चाहते हैं, यू नीड टू नो दैट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड हिम्मत एंड स्टेमिना, यू नो। सो आई लाइक दैट, एंड वो भी डर जाती है, वो पीछे हो जाती है, वो डर जाती है, she's Yeah. rethinking, you know. But she tells him मेरा हाथ छोड़ो. But I have to say Khushal Khan, amazing performance. And Rabia, you mark my words, Komal Mir and Khushal Khan are going to come again because the chemistry there, it's just fantastic. वो जो लास्ट सीन है, जब वो लास्ट सीन है, वो बैठी होती है तो कहती है, उसके कमरे में बैठी है कुर्सी पे, और वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए बट हम जुदा होने वाले हैं। और वो कहता है मैं कहाँ रहता हूँ, कहती है तुम तो मेरे दिल में रहते हो। इतना खूबसूरत दोनों का इंटरेक्शन है, इट्स रियली नाइस, एंड you want them to be together, you know, they just complement each other, not just their characters but otherwise also on screen. So I'm really, maybe that's the reason I'm watching that, मुझे बड़ा मजा आता है, you know. And I like it. They're very gripping. So again एक थोड़ा सा मेरा चैलेंज होता है कि मुझे काइंड ऑफ ये बात अच्छी भी लगती है कि सोबिया इज नॉट गिविंग अप ऑन हिम,
एंड मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रही हूँ, प्लीज आई वांट इट टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आई डोंट वांट दिस टू बी मिस्टेकन इन द सेंस कि अगर कोई एग्रेसिव है, बदतमीजी कर रहा है और अब्यूज कर रहा है, या आपके साथ फिजिकली बदतमीजी कर रहा है, या ये जो भी आपकी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या अपने अंदर का ये साइड दिखा रहा है, तो फिर भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में रहें और यू डोंट टेक अ स्टैंड, तो आई एम नॉट सेइंग दैट। द रीजन आई एम सेइंग कि आसिफ में आपको उम्मीद नजर आती है, ही इज ट्राइंग, और उसकी एक वजह है, उसके अंदर एक महरूमी है, और अगर सोबिया उस महरूमी को कर दे तो शायद ये ठीक हो जाए। तो मुझे काइंड ऑफ ये लगता है दैट शी इज नॉट गिविंग अप, बट देखिए सोबिया सोबिया इज नॉट लेटिंग हर सेल्फ सफर be affected. फ्रॉम, शी इज नॉट अ विक्टिम, बल्कि वो तो Because Sobia has a strong mind, and actually he is dependent on Sobia more than Sobia being dependent on him. Sobia manages to control the situation. How long can she do it, and how long will Asif allow her to be the one he is dependent? Agar wo bazi palat gayi, it आसिफ तो can be the करेगा, other way. आसिफ तो करेगा। हाँ, वो अब बीच में क्या होता है ये नहीं पता, कि वो वापस आएगा या वो वहां नहीं पहुंच पाता या कुछ और हो जाता है, बट आसिफ तो वांट्स हर टू हील हिम, यू नो, सो या सो इट्स मुझे सिर्फ ये है कि आसिफ का जो है ना रिलैप्स नाउ, अगर वो देखे कि यहाँ ये ताहिर के साथ भी ट्राई करें, बिकॉज दैट्स द डेंजर पॉइंट। एक्चुअली दैट्स प्रोमो जो देखा उससे मुझे लगता है शायद कुछ और हो रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग वही है, मुझे इसलिए मुझे ड्रामे का ये एस्पेक्ट कि जब औरतें दूसरी शादी करती हैं तो उनके बच्चे कैसे इग्नोर होते हैं, वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। आई लाइक इट, बिकॉज अभी भी वो सोबिया को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं जा रहा हूँ, और मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ की वो मोहब्बत नजर आ रही है मेरे जाने की वजह से, जिसके लिए मैं तरस रहा था। और ठीक है, उसके सुतेले बाप ने जो किया वो किया, लेकिन उसकी माँ भी बहुत बड़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिज सिचुएशन, फॉर हिज मेंटल हेल्थ लाइक दिस, यू नो। आई ऑल्सो थिंक कि बट माँ का कैरेक्टर जहां तक मैंने देखा, एंड आई अपोलोजाइज, आई हैवंट सीन द बिगिनिंग एपिसोड्स, मुझे काफी ग्रे और अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने जिस तरह बिठा के कुछ उसको समझाया आसिफ को कि अगर तुम्हें करना है तो देन यू हैव टू गो हेड, और तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा और तो काम करो उसके ऊपर। तो मुझे ये बात अच्छी लगी है। मुझे बैक स्टोरी नहीं पता अगर कोई नहीं, और उसके बचपन एजेंडा है। में है, वो सुतेले बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, and वो अक्सर यू नो शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट हर हस्बैंड, कि वो उसको क्यों मार रहा है जब वो मारता था। देयर वर टाइम्स, ओवर द टाइम वो बिल्कुल यू नो उसने गिव अप कर दिया है। अब मतलब पिछली दो किस्तों पहले ही ना वो बीमार है, उसको दवाई दिए बगैर वो चली गई, तो नो शी हैज बीन दैट्स नॉट, आई एग्री, ठीक ओके, वी कैन मूव है। ऑन। मोर महारा, मैंने मोर महारा नहीं देखा, तो आप उसको रिव्यू कर ओके, सो मोर महारा में एक्चुअली इट्स रियली गोइंग स्लो, एंड इसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो no matter how much I tell myself, ठीक है, I'm going to go into this dreamy phase, it's going to be slow, and you know I'll see कि उनका interaction कैसा है गर्देजी का और रोही का, but it is actually you need to speed up the story here because nothing much is happening. What did happen was कि गर्देजी and रोही में interaction हुआ, जिसमें वो अपनी शेरो शायरी कर रहे थे, जो उन्होंने हमें प्रोमो में दिखा दिया था, और शेरो शायरी में वो यही कह रहे थे कि तुम हमसे मोहब्बत करना सीखो। This was part of the shade, and so it was a very beautiful scene कि वो दूर बैठी हुई थी जनाने में, और वो वहां शेर अपना पढ़ रहे थे और ये सुन रही थी, एंड इनके दिल में जाके कुछ टक से लगा, एंड देन she spoke to him, and उनके मलूक शाह ने भी कहा कि देखो ये आदमी बिल्कुल बदल गया है रोही के सामने, और ये जो था ये अब नहीं है, he has really, so you can see the parents are also gravitating towards गर्देजी। लेकिन अब रोही एंड गर्देजी में एक सीन आता है when they are just looking at each other and she's really thinking, because she seems to be impressed by him and she likes him, and there is a soft, I like the way they have shown कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता grow हुआ है inside रोही, it's not something that happened, but she also cares for सिकंदर, so we don't know। सिकंदर का ट्रैक वही है, रुका हुआ है, आगे नहीं हुए। शेर आलम ने थोड़ा उनको समझाया है कि मलूक शाह जो है वो हाथ धो बैठेंगे आपके बेटे से, आई डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड। वो गई थी उनकी अम्मा से बात करने के लिए अलमास, लेकिन देखो आई थिंक व्हाट द स्टोरी इज शोइंग अस इज कि अम्मा अब्बा कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक मियाँ बीवी राजी नहीं होंगे ना, जब तक सिकंदर डजंट कम टू दैट लेवल, अलमास कितना बचाएगी उसको। एंड इट्स नॉट कि सिकंदर इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट सिकंदर अभी उस टाइम स्केल पे नहीं है, अभी उसको अपनी अम्मा के बारे में पता चले, अभी वो रिलेशनशिप, या तो फिर वो ऑलरेडी ही वाज हैंडलिंग द बिजनेस, अभी उसको बिजनेस हैंडल करनी है, एंड वो थोड़ा सा 1-2 नॉचेस मेच्योरिटी लेवल में कम है।
अगर गर्देसी पिक्चर में नहीं होता फॉर रूही, then I would say okay, Sikandar, she has the time, but she has a person who is 100% there with her. I don't know if she will love him the way she loved Sikandar, but कहानी थोड़ी बहुत यहाँ चल रही है for या him. ठीक है, वी कैन गो टू वहम। वहम और वहशी दोनों एक जैसे होते हैं तो हाँ, we can go to Veham. So आई वो तो अल्लाह। Isha is नहीं yeah बस full वहम detective work. बहुत ज्यादा मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है वहम। No, आई एम yeah. रियली इरिटेटेड बिकॉज आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ ऑल दीज मिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। वो बिल्कुल वहां लाके फिर आपको ना, आपको ये पता चला कि उस बॉक्स में क्या है, ना आपको पता चला कि खावर और रुखसाना का क्या सीक्रेट है। अब शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी जो भाभी है बड़ी वाली, एंड हो इट्स गई है. या एंड यू नो Yeah. इट्स वेरी वेरी इट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इतना आगे ले आए ना अपना, और स्टार्ट टेलिंग अस समथिंग और द अदर ना। इतना क्यों ड्रैग Yeah. कर रही है? एटलीस्ट बॉक्स खोल के वो एक लेटर पढ़ लेती, या खावर और रुखसाना उसी वक्त खोल देती ना. अब वो फिर भी अगर वो लेकर जाएगी तो फिर उसके सामने कोई नजर आ जाता है, फिर वो नहीं पढ़ेगी लेटर या फिर वो या पूछेगी. या तो इट्स या एंड जी बोले। नहीं बोलो. नहीं बस मैं यही कह रही हूँ, तो वो जो सारे ड्रामे का इम्पैक्ट है ना, जो आप उसको जितना आपको इंटरेस्ट था वो अब गिरता जा रहा है। बिकॉज आप पूरी एपिसोड देखते हैं 40 मिनट्स की, एंड यू लाइक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक यार, ये वही बातें हो रही हैं, वही खावर रुखसाना का क्या चक्कर है, क्या चीज वो छुपा रही है, फरीद उसका बेटा है या नहीं है। वी हैव नॉट बीन Yeah. गिवन आंसर टू इवन अ There are सिंगल। question marks in the air everywhere, and the question marks are just becoming boring now. Because देखो, as Sabahat, as Khawar's wife, Sabahat has a right to know, भाई ये मेरे घर में तुम झूठ बोल के गए हो, मीटिंग है, तुम वापस आए हो फाइल लेने, तुम बैठे हुए बातें कर रहे हो उससे, एंड यू आर नॉट टेलिंग मी, तो एंड देन यू आर सेइंग कि ऐसा नहीं है जो तुम समझ रही हो. या So एग्जैक्टली obviously it या is something strange. एंड देन वहां वो सायरा कह रही है कि नहीं वो बहुत अच्छी हैं, तुम नहीं जानती उनको, और वो नहीं है वो सब कुछ. तो भाई अगर अच्छी हैं तो नो वन सीम्स टू नो अबाउट इट. फिर वो जो नाइटमेयर उनको आ रही है, हेल्यूसिनेशन जो वो कर रही है दादी कि नहीं आपने भी यही समझ लिया कि फरीद मेरा बेटा है, आप तो मुझे जानती थी. तो भाई अगर नहीं है कुछ तो फिर वो नसीम को फोन करें. तो आई लाइक दैट ट्रैक जो फरीद इज प्रिटेंडिंग टू बी अ कुरियर. मैंने कहा चलो कुछ तो, और वो ईशल ने धक्का दिया उसको. I like the way she took the number. That was interesting, and told him कि you get a new SIM, don't just because ईशल का दिमाग तेज, इन सब में से एक्चुअली सिर्फ ईशल का ही दिमाग तेज चल रहा है. Even So Junaid is not yeah, trying to find out the answers. Junaid is not, वो तो बिल्कुल yeah. ही उसको उसके कैरेक्टर में थोड़ा सी और जान डाल दी जा सकती थी। उससे बेहतर तो मुझे फरीद लगता है कि एटलीस्ट ही इज मेकिंग एन एफर्ट, ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, Yes. यू नो। Yeah. सो हाँ. वो है, एंड सो सिर्फ सबाहत जो खावर की वाइफ वो नहीं, हम सब भी तंग आ गए कि भाई क्या चक्कर है दोनों का, क्यों आप Yes. आप हाँ. हाँ. क्योंकि वो या बता ही नहीं रहे, अपनी बीवी को भी नहीं बता रहे. Okay, so we can go on. या वी कैन मूव टू अगर, द न्यू ड्रामा। Yes, and I'm so proud of myself. Rabia told me to watch it, and I watched it. So yeah, Jugun Kazim is back. I really like watching her on screen after so many years. Yeah. सो आई लाइक द ड्रामा, मुझे मजा आया देखने का, क्योंकि तीन बहनों की कहानी है, तीनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से सब, एंड कास्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे लगा तीनों को जो लिया है वो बड़ा, मतलब लाइक आई एंजॉयड वाचिंग हिना अल्ताफ एज यू नो कोरिया, एंड देन माहीन जिनको हमने पहले दोबारा में देखा था एज चांदनी, के वो Yeah. मीवी दबी हुई, और वो बेचारी पिटी हुई घर वालों से भी, यू नो आसपास से भी। हाल बेहाल हाँ, सबके लिए चाय बना रही है. जो बड़ी बहन है लेकिन उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड नोबडी सीम्स टू केयर कि उसकी शादी की एज शायद निकलती जा रही है अकॉर्डिंग टू हर, और ये कि उसने अपनी जिंदगी रोकी हुई है, यू नो। सो आई रियली, मुझे लगा कि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें यू नो यूजुअली 2 या 3 कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें 3-4 कैरेक्टर्स हैं, और कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकता है। देन उसामा खान, That was the grocery. I loved the way he took the grocery and went ahead. एंड देन वो जो और वो जो मोटरसाइकिल पे वो गिरता है, वो मोटरसाइकिल पे जो गिरा था, yeah. वो इमेजिन कर रही होती है, लेकिन इट इज सच, इवन देन इट्स अ क्यूट सीन, यू नो। तो मुझे Yeah. बड़ा मजा आया वो देख के। And I like the fact that they can add this cuteness, and I hope they हाँ, continue doing it inside any serious theme that they're doing, because that's what you can do. Because इतना heavy तो topic नहीं है ना, तो आप उसमें डाल सकते हैं. So it was fun. Both of them were fun. हिना बयात आफ्टर काफी अरसे बाद हमने उनको देखा, तो मुझे उनको Yeah. देख के बड़ा मजा आ रहा था। Yeah. हाँ, I liked her, and I thought she was, you know, she had her जो उनका सारे 4 वो घर रन कर रही है, and she has to look at each one of them. और वो ही ना कि किसी से वो ना तंग आई हुई है कि हाँ ठीक है हुरिया तो ऐसी है, हुरिया तो कुछ नहीं करेगी, पता है कि चांदनी सारा काम कर देगी. बैराम को स्पॉइल कर रही हैं,
So you can see that एक बच्चा है, और ये मैंने बहुत जगह सुना है जहाँ एक बेटा होता है, कभी कभी जब वो यंगेस्ट होता है तो वो बहुत स्पॉइल्ड होता है, और वो अम्मा बाबी यहाँ सिर्फ अम्मा है कर रही है. I'm liking Annie's character because Rabia, Annie has this quiet authority around her. Yes, So yeah. एक वो होता है ना कि आप अर्न कर रहे होते हैं, you are footing the bills, और आप सुना रहे होते हैं. Annie is not doing that. Right. Annie कहती है मेरे पास ये खर्चा है, आपको ये चलाना होगा. एनी को पता है कि बैराम और कर सकता है पिचन, लेकिन नहीं कर रहा है. एनी, आई लव्ड इट दैट शी वेंट टू द सैलून and she spent money on herself, and that is such a good message to everyone and all the women. नहीं, Yeah. लेकिन उसने क्यों किया? वो हाँ क्यों किया, ठीक है, हाँ, चलो कोई बात नहीं. आई गिव हर दैट आल्सो. क्यों किया Yeah. मैं कहती हूँ चलो कोई उसको बात नहीं, फिर भी किया. कैरेक्टर से भी वो अच्छा. मुझे ये भी है कि मे बी अब दोबारा दे आर गोइंग टू टच द टॉपिक ऑफ मैरिंग अ गाय मे बी यंगर देन यू. लग रहा है, वी आर नॉट श्योर आगे क्या होता है. बट जो एक और चीज थी, जुगन इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. उनकी जो ये सब बातें तुम कह रही हो ना, कि वाकई वो फील आती है आपको कि यू ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट हर, यू फील फॉर हर. एक दुख है, एक एक ऑरा है उनकी उनके कैरेक्टर के. इसी तरह हुरिया जो है, वो बिल्कुल केयर फ्री, वो अपनी शादी के बारे में सोच रही है, मैं अपने मियाँ के साथ ये करूंगी और वो करूंगी. सो बड़ा मजा आ रहा है कॉन्ट्रास्ट देख के. और माहीन का जो कैरेक्टर है चांदनी, वो कहीं बीच में फंसा हुआ है, तो आई लाइक द ड्रामा. अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, सो वी हैव टू सी कि आगे थीम्स को लेके चलेगा, लेकिन मुझे मजा आया. No, I also enjoy. We were talking about Hina Bayat. I think जब हम नहीं, or we spoken about her. चलो, then we are done. Yeah, sorry. याद का बताया, आई जस्ट वांट इट्स नाइस टू सी बैक. एंड वही होता है कि ये जो आप सीजन्ड एक्टर्स होते हैं ना, जब आप उनको देखते हैं तो आपको फिर लगता है कि यार दे आर here for a reason. Like she comes and she's in that role immediately. उनको जरूरत नहीं है. वो इतने अच्छे से बैलेंस कर रही है कि वो माए जो बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन शी इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि मुझे मुझे पैसे चाहिए, और कि तुमने अपने पार्लर पे पैसे क्यों खर्च किए. ये तो आई लाइक हर कैरेक्टर इज अ बिट ग्रे. इट्स नॉट ब्लैक और इट्स नॉट व्हाइट. इट इज इन बिटवीन, एंड विल कीप सीइंग समटाइम्स उनकी अच्छी बातें और समटाइम्स उनकी बहुत फजूल बातें जो हमें शायद नहीं अच्छी लगेंगी. Actually, it's very, very real. What she is doing is very real, and we've all seen it play out. कि जहाँ जरूरत होती है पैसों की, तो आप अपने बच्चों को ही कहते हैं कि एक और नया जोड़ा मत बनाओ, या मुझे पैसे दे दो, मैं बनवा दूंगी सस्ते, बिकॉज तुम जाके महंगा खर्चा करोगी. So it is, and I hope it stays like this. You're right. Yeah. Okay. ठीक है So जी. watch Agar if you are not. And now we go on to तिनके का सहारा. तिनके का सहारा. भाई क्या नाम है इनका, हमाद ने. Hamad has won my heart. Hamad is the new Pakistani hero, drama hero that I want every other hero to be. And I think it's just wonderful the way they have treated it. ठीक है, maybe he is too good, but it's okay. Sometimes we need someone who's Actually, I was thinking about it. He's not too good because at some okay. points I feel like यार उठो ना, तुम भी तो कुछ कर लो. बस वो तुम्हारी बीवी कर रही है तो तुम उसकी मदद करो. It is okay. I don't know how to say it. I like Fuad's character. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. He's progressive. He's supportive. उसने अपनी बीवी के काम को थ्रेट नहीं लिया है, और वो उसको जितना वो मदद कर रहा है उसकी, और उसको इनकरेज भी कर रहा है. और वो ऐसी बातें भी करता है कि बीवी औरत मर्द की मदद करे तो कुछ नहीं है, बीवी मर्द की खिदमत करे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मर्द बीवी की खिदमत करे तो ये टैबू या बुरा क्यों समझा जाता है, हम क्यों वी स्टार्ट मेकिंग बातें. बट अगर देखा जाए तो इट इज लाइक कि हम इतने तंग आए हुए हैं ऐसे कैरेक्टर्स देख के, या हम जिंदगी में जो हमारे आसपास होता है उसमें मर्दों का जो एक लिमिटेड सा रोल है और लिमिटेड सा माइंड सेट है, उसके हम इतनी आदी हो कि हमें जरा सा भी कोई चीज डिफरेंट नजर आती है तो हम कहते हैं ओ वाओ. बिकॉज कदर ने उसको पुश किया तो वो उसने बिजनेस किया. वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा था, एंड ही इज ऑल्सो लाइक वो उसका थोड़ी सी और भी मदद कर सकता है, या वो और भी कुछ कर सकता है. ठीक है, वो कर रहा है. सो ही इज नॉट, and that's where I want to appreciate Haroon, that he's playing it in such a way कि for me at least, maybe आप लोग नहीं देख रहे हो, he's not the perfect guy, but you still like him and you still appreciate his support is, for me, his support is more than perfect. But yes, you are so right कि he's not the perfect guy. उसकी, and I'm very glad they showed that कि वो जब वो रेस्टोरेंट से आ रहा था और he was saying हम नहीं कर सकते ये, and then उसने आहिस्ता आहिस्ता समझाया कदर ने. But the way he is supporting her, उसको चाय बना के, और मुझे ये, I wanted to thank the director also, क्योंकि जब आपने देखा वो डेस्क पे बैठी हुई थी और वो एक छोटे से स्टूल पे पीछे बैठा हुआ था. Even the height differential was there, but that's just the way it was, and he didn't seem to mind. तो मैं कह रही हूँ उसमें
मुझे लग रहा है कि कहीं उसकी मेल ईगो जो है वो नहीं आई है, विच इज जस्ट सो रिफ्रेशिंग टू Yeah. वॉच फॉर अ चेंज। और ये क्या हम इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं देख के, बिकॉज हमें लग रहा है कोई बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात हुई है, क्योंकि जबकि बहुत मेरे सारे हिसाब से मैं उस उन्होंने जो हमारे जो अच्छी चीजें की मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, बट लाइक उसकी दुकान दिला दी तो वो ज्यादा तरक्की करेगी, तो तरक्की करेगी तो तुम ही फायदा उठाओगे ना, 2-3 और औरतें हायर कर लो, बट गाड़ी लेकर आ गया तो, और वो जो कहते हैं ना बाहर के काम मर्दों के करने वाले, तो वो कर रहा है उसके लिए जो बाहर के काम, बट आई फील ही कुड कंट्रीब्यूट मोर देन दैट, बट एज वी सेड So ठीक है। my favorite moment was when the अम्मा said, तुम तो जा रहे हो अब दूसरे घर में, बीवी तो तुम्हें लेकर जा रही है, and the way he tackled it and the way उसने बड़े मजे से कहा कि एक और घर होगा, ये होगा, वो होगा, एंड उसने मजाक मजाक में वो भी, तो आई थिंक हमाद का पॉजिटिव है कि वो मजाक में बहुत सारी चीजें कर लेता है या करवा लेता है। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू से कि आप भी चले हमारे साथ नए घर में, लेकिन उसने नहीं कहा ये। शिफ्ट नहीं Were कर you रहा है, waiting for नहीं him लगता to वो shift? शिफ्ट कर रहे हैं, उसने सिर्फ घर लेके दिया है हाँ, उसको, अभी वो शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो उसने घर हम्म, लेके दिया है कि एटलीस्ट तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। बट ये ओके, अंजलि लासिम का लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट हर एंड द डायरेक्टर, बिकॉज इतनी इंपॉर्टेंट चीजें शादी, ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, यस, मेन मैंने जो पॉइंट्स निकाले थे वो परफेक्टली ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन द फैक्ट दैट ही सपोर्टिंग हिज वाइफ इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मर्दों को जरूरत है दिखाने की, ऐसे रोल मॉडल्स करने की, तो आई एम लाइक दैट। अब आ जाए आप दूसरी तरफ दूसरी स्टोरी पे, विच इज यस, वासे एंड तुलिया। अगेन शाजिया, आई एम जस्ट लाइक आई रियली मतलब मुझे अच्छा लगा था देख के कि उन्होंने दुरिया के थ्रू वो टेरर दिखाया कि एक पढ़ी लिखी लड़की है, इंडिपेंडेंट लड़की है, वो पैसों की खातिर माँ बाप के काइंड ऑफ अगेंस्ट जाके उसने शादी की वजह से, लेकिन जब उसको डोमेस्टिक अब्यूज हुआ तो उसकी हालत क्या हो गई कि वसे का आवाज सुन के उसके हाथ से ग्लास गिर गया। सो दिस इज सच अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन फॉर एंड एन आंसर टू ऑल दोस पीपल जो कहते हैं ना कि भाई इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी डर, तो स्टैंड क्यों नहीं लिया। डोमेस्टिक अब्यूज इज जस्ट अनदर थिंग, उसको वो यस, इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है, स्टैंड हाँ, लेना आसान नहीं होता है, एंड सो आई एम ग्लैड दैट दे हैव शोन दैट एंड आई एम सो ग्लैड कि वो पेरेंट्स जो है वो शुरू में भी पेरेंट्स वर वेरी अवेयर, क्योंकि शुरू में भी शादी से पहले भी वो उसको मना कर रहे थे, बट देन सिंस शी इंसिस्टेड और अम्मा ने कहा ये हमारी बात नहीं सुनेगी, बट नाउ दे आर सपोर्टिंग हर अगेन। शुरू में दे ट्राइड कि उसकी बनी रहे, लेकिन अब जब वो आई एंड दे लिसन टू हर, शी सेड मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, जबकि शी इज प्रेग्नेंट। तो वो बड़ा एक वीक मोमेंट भी होता है कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट देन अम्मा अब्बा कहते हैं कि वापस जाओ, बट दे सॉ हिम इन एक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर नॉट मेकिंग द फादर लैंड अप इन द हॉस्पिटल। मुझे लग रहा था कि वो अभी करेगा कुछ वासे उनके साथ और फिर उनको हार्ट अटैक होगा, कुछ होगा, ब्लड प्रेशर, वो हॉस्पिटल में जाएंगे और वो वापस चली जाएंगी। बट थैंक गॉड, एंड आई होप द नेक्स्ट एपिसोड डजंट शो दैट आइदर, बिकॉज we want young girls to see that parents can stand up for you and they can be there for you. And I like the way कि उन्होंने मोहल्ले वालों को भी चुप कराया, उन्होंने कहा कि तुम लोग चुप हो जाओ, तुम्हारी बेटी होती तो तुम ये करने। So all these dialogues are very important to वसे का bring us to कैरेक्टर भी बहुत whichever. इंपॉर्टेंट है, वसे का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी साइकोलॉजी दिखा रही है, वो भी उसका भी है, वो ऊपर नीचे होता ऊपर है, नीचे जा रहा है, लेकिन या बहन जब उसको वो करती है ब्रेन वॉश, तो वो हाँ, की नेगेटिव साइड यस, ज्यादा उभर के आ जाती है। हाँ, ही या लैक्स समबडी जो उसको सही डायरेक्शन बताए, उसके पास सिर्फ नेगेटिविटी और एक डायरेक्शन की तरफ जाने की ब्रेन वॉशिंग आ रही है, कोई उसको दूसरी साइड नहीं दिखा पा रहा है, तो ही नहीं जस्ट दिखा रहा। Rabi, I just wanted to say, although we are appreciating everything about because what's happening right now, I'm liking it. एक और एक्टर से कल उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजे थे, एंड what he said was about negative characters or grey characters. He said कि हम एक बैक स्टोरी दिखाते हैं. I would like to see a little more of Vase's back story. ठीक है, मुझे अदीला नजर आ रही है, मुझे पता है वो क्या अदीला भी क्यों कर रही है इतना ज्यादा, क्यों, उसमें भी तो कुछ है ना, ऑब्वियसली दैट शी इज डूइंग इट। सो आई वांट टू सी दैट, एंड दैट विल हेल्प मी, क्योंकि आगे जाके एंड वासे को दिखाएंगे, आई थिंक दैट ही विल, बिकॉज ही विल टर्न ओवर अ लिटिल बिट, क्योंकि उसको कैंटीन में भी दिखाया था जिस तरह उसको एहसास होता है कि ही डिड समथिंग रॉन्ग। मैं उससे कनेक्ट ज्यादा करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ से बहुत कनेक्ट कर रही हूँ।
So One more thing, for me, for me, finish this. for me, it is a back story है कि उसकी बहन ने उसको मैनिपुलेट किया है. She is the one Okay. जो उसकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस है, और वो उसको गलत बात की. देखो, माँ बाप और घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप किस तरह करते हैं, आज आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उससे में आपके माँ बाप उसको इंकरेज करें, तो आपके अंदर वो चीज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. तो वासे के साथ भी यही हुआ है. हाँ, अदीला की का क्या मोटिवेशन है, उसको जायदाद चाहिए, वो कंट्रोल में रहना चाहती है. उसका मियाँ खुद कुछ करता नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि भाई ये मुझे बैठे बिठाए, मुझे सुकून का टाइम चला जाए, वरना मियाँ भी छोड़ना पड़ेगा, ये आसाइश भी छोड़नी पड़ेगी. मियाँ कर भी ले तो ये आसाइश तो नहीं आएगी. इट्स सिंपल दैट. फॉर मी व्हाट आई वुड हैव लाइक टू सी इज अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा वासी के कैरेक्टर को नीचे लेकर आते. ही इज टू एक्सट्रीम, ही इज टू अनरियलिस्टिक फॉर मी. यस, ठीक है, दिखा रहे. आई वुड हैव लाइक टू सी अ मोर बैलेंस्ड positives and negatives in his way. Yeah. Because अभी वो मुझे सिर्फ, I'm sorry to say, he's some crazy person to me, and for a crazy person to reach this kind of business success मुझे नहीं समझ आती. because क्योंकि Yeah. Because she said कि उसने खुद ही किया है, उसने खुद ही बनाया है. So it's not अगर like, तब तक मैं समझ रही थी that he got it. तो वो कोई 1 महीने पहले तो नहीं ऐसा हुआ ना, वो तो बहुत अरसे से ऐसा आता है. तो अगर वो ऐसा था Yeah. तो कैसे वो इधर तक पहुंचा, उसकी जिंदगी में किस तरह इतनी, बिकॉज इस तरह नहीं होता है. देयर आर रिपरकशंस, तो मुझे ये लगता है Of कि उसकी एक course. जरा ज्यादा बैलेंस साइड दिखाते, या फिर ये दिखाते कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ट्रिगर हिम. वो तो हर दूसरी बात पे गुस्सा हो जाता है, वो तो हर दूसरी बात पे ही लूजेस इट. जहां उसकी बहन उसे चाबी देती है वो कर देता है. सो आई वुड लाइक कि उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा मेलो डाउन करते हैं, a more realistic version of I think Rabia, what we are saying is that जब आपके कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं और फिर आप दिखा रहे हैं कि उनका चेंज ओवर होगा, तो फिर आप उनको बिलीवेबल रखें फ्रॉम डे. आप उनको उस टाइप का एक्सट्रीम ना दिखे, हम कहेंगे कि इनका चेंज ओवर नहीं हो सकता, being fair to that woman whom you expect to change him over. Yeah. Because those characters are different. Those characters who go to that extreme, they cannot was that जब शीला ने इसको बताया और मुझे तो लग रहा था झूठी बोला कि तुम मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मुझे मारते हैं या ये करते, मैं बर्दाश्त करती हूँ. वासी को फौरन गुस्सा आया एंड ही सेड हाउ डेयर he is doing the same thing with his wife, but he didn't see that. But if someone does that to his sister, he has a problem. And a lot of people who do this abuse, they do this कि वो किसी और अपने नियर एंड डियर वन के साथ नहीं मैनेज कर सकते या नहीं टॉलरेट कर सकते, लेकिन वो खुद कर रहे होते हैं वो सब कुछ, और they condemn it in public, but they do it themselves. उसको So खुद that I कंट्रोल think, नहीं है ना चीजों पे. सो अब वो एक बाहर से जब उसको अपनी बहन के बारे में पता चल रहा है, तो ही कैन सी दिस इज रॉन्ग एंड इट शुड नॉट बी yes, हैपन. लेकिन उसको अपने एक्शंस पे कंट्रोल yeah, इतना he's not aware enough. उसको इतना आदी बना He दिया, didn't put, सारा गुस्सा आता है. yeah, करो बिल्कुल, जो करना है तुम करो, एंड बी द वेशिएस्ट पर्सन वर्जन ऑफ योरसेल्फ. yeah. चलें जी. सो वी मूव ऑन Okay. टू हब्स एंड कैसी तेरी खुदगर्जी रह गया, राइट? Okay, yes, we have hubs and कैसी तेरी कैसी तेरी खुदगर्जी. So खुदगर्जी. कैसी तेरी खुदगर्जी, yeah. Okay, oh, we said that together. Acha ji, so he is trying to come back to self which is more normal. क्या आपको तरस आ रहा है शमशेर पे, and are you ready to forgive him for everything that has happened so far? Some part of me thinks yes. Then I have to remind him. Then I have to remind myself कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम था. एज आई सेड, उसमें आपने कोई विंडो नहीं खुली छोड़ी थी. लेकिन यस, वो जिस तरीके से मतलब वो जो उसका बिल्कुल ही चेंज हो गया है कि वो मजदूरी भी कर रहा है, 50 रुपए भी रख लेता है, 900 रुपए का एक एक्स्ट्रा 1 घंटा भी करता है. और मतलब फॉर हिम इट्स अ रियल टॉर्चर. जो इतने तनतने में रहता था बंदा, जिसकी गर्दन नहीं झुकती थी, फॉर हिम कि वो लोगों की बातें सुने, उनकी चीजें पैक करो. ये एक अलहदा किस्म की का जर्नी है उनके लिए. उनके कम टू टर्म्स विद बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट. लेकिन वही बात है ना कि आई विश कि उसके पर्सनालिटी या उसकी सिचुएशन के कुछ दरवाजे आप खुले छोड़ दे, जिससे हमें लगता कि हाँ, इसका चेंज ओवर हो सकता है. सो या दैट्स द थिंग. एंड again the problem comes to the basic thing, and I hope the writer and the director are listening to us. The main problem stays at the fact, Shazia, that you cannot give this message कि एक इंसान जो आपको जबरदस्ती
सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के लिए आपको शादी करा के लाया है। उसने आपकी एक भी नहीं सुनी, एक भी कतरा आपकी फीलिंग्स का नहीं सोचा, आपके घर की इज्जत, आप मतलब वो मोहल्ले में बाहर खड़े होकर हरकतें करता था। ही डिड नॉट थिंक अबाउट एनी ऑफ दोज। उसी से उसका इतना बड़ा चेंज ओवर नहीं हो सकता। और ये कि वो लड़की फिर उससे मोहब्बत करने लगे और उसको एक्सेप्ट कर ले, इट्स जस्ट गिविंग अ वेरी वेरी रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मैसेज। आप उसकी पर्सनालिटी, उसकी सिचुएशन का कोई दरवाजा खुला छोड़ते, उसको इतनी एक्सट्रीम पे नहीं दिखाते, तो फिर मुझे मुझे समझ आती है। या फिर उसको Okay, and उसको उसको व्हील चेयर पे ले आते, वो कर देते कि हाँ अब वो आउट ऑफ मर्सी उसके लिए करिए, फिर भी मुझे समझ आती कि यार अब तो उसको सजा मिल रही। यंग है, सही है भाई, जवान है, मजदूरी कर रहा है, अभी भी जाएगा बाप के पास तो बाप उसको रख लेगा। सो अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो मुझे लगता है कि हाँ शायद इतना बुरा नहीं हुआ उसके पास। तो आई ऑल्सो गो थ्रू कंफ्लिक्टिंग emotions when I'm watching it, but for me definitely a no because of all that they have shown earlier. yeah, yeah. I just always sometimes look at the equal situation कि जब उसका बाप hospital में था and she went to see him, so he was really mean with her, I remember. And अब when her father could have passed away, लेकिन अब that his mother has passed away, it's not that he's expecting anything from her, but we are made to feel more sorry for him with the way he is crying and saying कि वो चली गई और वो नहीं वापस आएंगी, and him thinking about the past जो हमने वो space उसको नहीं दी थी, his wife that we are giving. मैं नाम भूल रही हूँ, what is her name? महक. हाँ, हमने वो स्पेस महक को नहीं दी थी जो हमने शमशेर को दिया. एंड आई एम टॉकिंग स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज. हमने क्यों नहीं, why are we made to feel more sorry for him? Does she not have the same emotions and the same relation? So मुझे ये प्रॉब्लम है. बात ये कि अब्यूज है, प्लीज, व्हाट ही वाज डूइंग वाज अब्यूज, मेंटल, इमोशनल, हर किस्म का अब्यूज था। ठीक है, उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, बट इट वाज अब्यूज, एंड नॉट जस्ट ऑन हर विद हर फैमिली आल्सो। अब विद ऑल दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट डोमेस्टिक अब्यूज एंड अब्यूज इन जनरल, we need to make people realize that you cannot do that and girls should not keep quiet and they cannot keep taking it. So कल कला को कोई भी एक एक्सट्रीम एक्शन करेगा और वो फिर आके माफी मांग लेगा कि मैं तो सॉरी हूँ, मैं तो चेंज हो गया, तो आप बोलेंगे ठीक है यार, तुमने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया था, बट अब तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत बुरा हो गया, तो अब मैं तुम्हें माफ कर दूं। नो, यहाँ तो फिर भी हो गया। किसी और सिचुएशन में जिसने उठाया है, जिसने आपको जबरदस्ती किया, वो माफी ना मांगे, वो आपके साथ और भी बुरा करता रहे, फिर क्या करेंगे? So, बिल्कुल, and I know that they are trying to show it by showing कि महक जो है वो बस बेसिक काम कर रही है, उसके लिए खाना बना के दे दिया, नहीं अच्छा लगे तो किसी को दे देना, नहीं खाओगे, उससे ज्यादा वो नहीं, उनका जरा खिंचा खिंचा ही कनेक्शन दिखाया है. But that's also not enough. It's not enough कि महक is not melting right now. The fact is that what he did is actually see that she's she is melting, but she's taking her time to do it, which is perfectly okay. But the extreme that you showed before is making me question as a viewer, because I'm thinking of Mehak still. I'm thinking she went through a whole lot more than you are going through right now. Yeah. So एक ये थी. अच्छा, should we come to Nida and Ehsan now? Yes, वो तो एक और ही कहानी है भाई। मतलब प्लीज यार एहसन साहब, आप यू शुड रेज योर वॉइस। कुछ तो मतलब एक दिन की दुल्हन है, उसके साथ ये था, इस तरह का सलूक करना, दैट्स सो अनफेयर। अब तो इतना स्टैंड ले लिया था, तो अब आप थोड़ा सा कुछ कहें अपनी अम्मा को. आई टोटली एग्री विथ यू. रात को जो उन्होंने आके कहा उनसे कि अनु तुम्हारी भी कहानी डिफरेंट थी, मेरी भी डिफरेंट थी, लेकिन अब हम साथ हो गए, फिर वो उसको छोड़ के चला गया. सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम कॉन्वर्सेशन देयर. कॉन्वर्सेशन, मैंने भी यही सोचा कि अच्छा ये चला जाए तो इसमें मसला क्या है, तो तुम क्या कॉन्वर्सेशन। उसने एक रियलिस्टिक बात बोली ना, और उसने अच्छे से उसको बोला, उसने तोहफा भी दिया। अब वो चेंज करने गया, वापस आया है ना, वापस आ रहा है, ये थोड़ी कमरे से ही चला गया है। आई वांट एज अ व्यूअर, वो चेंज करके वापस आता, फिर कॉन्वर्सेशन दिखा देते ना, कुछ तो कॉन्वर्सेशन दिखाते कहीं, मतलब will their relationship go deeper or not? और did you want कि वो उस वक्त उसका हाथ पकड़ के कुछ एक दो और जुमले बोलता है? नहीं, हाथ पकड़ने की जरूरत. I'm not saying romantic conversation. I'm saying a meaningful conversation going forward. His expectations, it was very short for me. I think they could have. ड्रामे में वो पेजेस बाय पेजेस थोड़ी सीन दिखा सकते हैं. सो मुझे ये लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन निदा की ये थी कि थोड़ा सा वो जरा उसकी तरफ
झुकाव दिखाएगा या वो करेगा, उसने बड़ी मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से उसको बोला कि ये था, अब हम मिलके ये करेंगे और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मे बी शी ऑल्सो वॉन्टेड, मे बी वो एक जुमला बोलती कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम अच्छी लग रही हो। ये हर लड़की में होता है, हर औरत में होता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे उसकी जबरदस्ती के। वो तो एक बड़े नाजुक मरहले से गुजरी है जहां उसको लगता है कि वो किसी की जिंदगी में अनवांटेड है, तो मुझे लगता है अगर ऐसे एक दो जुमले हो जाते तो शायद निदा को ये चीज ये फील नहीं होती। या आई टोटली एग्री विथ यू, और शायद मुझे भी फील नहीं होती ये हाँ चीज, एग्जैक्टली। मुझे भी फील हो रही थी। हाँ सो अम्मा हैज रीच्ड ऑल और लिमिट्स और ऑफ, अब बस हाँ और वो ये भी कह सकता था कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, एंड और ये भी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और आई एम श्योर तुम्हें भी टाइम चाहिए, कि हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे हाँ को ये बिल्कुल, फील करने चाहिए थे, या फिर ये कह सकते थे। या राबिया, आप एक किसी और जन्म में कोई ड्रामा राइटर तो नहीं थी, स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं थी? अच्छा, लेकिन वो अम्मा जो है ना उनकी, अब वो जुल्म, अब नाउ आई वांट टू सी एहसन साइडिंग हर एंड स्टैंडिंग अप फॉर हर। सो आई डोंट नो, अभी तो दे जस्ट पास लुक्स बिटवीन ईच अदर, सो आई एम होपिंग ही राइजेस टू द ओकेजन। देखते लेट्स सी। हैं। ठीक है जी, वी कम टू हब्स। वी कम टू हब्स, ओके जी। सो आयशा ने कह डाला जो उनको कहना था, आई लेकिन मेरा सवाल, मैं तो थक गई थी आयशा की वो बस रोना धोना सुन सुन के। थैंक गॉड उसने मेहंदी शादी वाले दिन भी अब स्टैंड लिया, अपने दिल की बात बासित को बोली, उसने अपनी माँ के अगेंस्ट स्टैंड लिया। थैंक गॉड, सो आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट शी इज फाइनली टॉकिंग एंड सेइंग थिंग्स। आयशा को थोड़ा सा शुड शी स्टॉप हर ईज ड्रॉपिंग हैबिट, बिकॉज वो खड़ी होती है दरवाजे पे, वो सुन लेती हैं वो बात, और फिर वो आधी बात होती है, फिर वो गुस्सा हो जाती हैं, तो फिर वो स्क्रिप्ट नाराज हो को जाती बोलना हैं। चाहिए, आयशा को तो नहीं। हाँ, तो मैं आयशा को कहवा रही ना, तो मैं आयशा को बोल रही हूँ, स्क्रिप्ट ने आयशा को करवाया है ये। बट एक्चुअली दिस हैपेंस, आप आधी बात सुनते हैं और फिर आप उस पर रिएक्ट करते हैं, फिर आप एक कॉन्वर्सेशन लेकिन कम्युनिकेशन नहीं आधी करते बात आप नहीं थी, उनसे। उसने जो बात सुनी है वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसने पहले की बातें नहीं सुनी ना, does जो not वो make a उसको difference. चाबी दे रही Does थी, not make या a difference. बासित के जहन में अगर ये ख्याल भी आया कि मैं इसकी माँ की वजह से इसको आई एम सॉरी, अगर मैं आयशा की जगह होती, आई वाज लाइक ये वैल्यू है मेरी कि किसी एक और इंसान की वजह से तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे? आई एम सॉरी, नो। यस, यू कैन से आई डोंट लाइक इट, एंड यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड यू कैन टेल मी कि ये नहीं है, बट मतलब दिस इज, आई एम सॉरी, दिस वाज रियली not acceptable as far नॉट as एक्सेप्टेबल, या when you love someone, when you want a relationship, तो उसके गिर्द जितने लोग होते हैं वो आप बर्दाश्त करते हैं, आप करें। बट आप ये थोड़ी बोलें कि उसकी बहन, उसकी माँ, उसके बाप की जैसे मैं इसको जिंदगी, इसका मतलब है you don't have enough. So actually, he should have that conversation with Aisha. Okay, I'm finding it very hard to have a relationship with you with your mother in between. So that conversation I think can happen. कि मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं बढ़ सक रही है क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती हैं जिससे फिर, and that dialogue that she gave him was really nasty. जो उसने कहा था कि तुम्हारी अम्मा से तो ये तुम तो रहे नहीं हो उनके साथ, या वो, that was a very nasty dialogue that shouldn't, and it's wrong what he said, but it came from there. मेरे लिए ज्यादा गुस्से वाली बात वो थी कि जब वो आई थी शादी पे, नहीं, जब वो वापस घर आ गई थी, एंड ही सेड कि अगर तुम नहीं आती आज तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता। That really made me angry. That showed me how egotistical this man is, because आपने उसको हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाला, आपको 10 दफा आके माफी मांगनी होगी before you think, because Aisha is not in that space, she's not ready to go back yet. Even though you said sorry once कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, why should she go running अगर वो पहली दफा उसको लेने And आया है? Fahad had to prove his innocence for you Yes, to believe कि भाई yeah, दोनों के दरमियान कुछ नहीं था। और दूसरी बात ये, अब जो इस बात पे आएगा कि वो घर वाली बात, आप भी तो इन्वॉल्व थे, आपने भी तो पेमेंट की ना, और आपने आयशा को नहीं yes, बताया, आप अभी भी आयशा को हाँ, नहीं बता रहे, एंड यू हाँ, होल्ड इट अगेंस्ट हर फैमिली एंड हर मदर, एंड शी इज कंफ्यूज कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। सो इट्स नॉट रियली फेयर टू हर। एक बात ये, अच्छा yeah, दूसरी बात ये, जब वो आयशा से बोल रहा होता है तो मैं यही सोची थी, जो आयशा हाथ पीछे हटाती है ना, लाइक यस। यार बड़ा मुश्किल होता है कि जब एक दफा कोई इंसान आपके साथ ऐसे बेइज्जती कर दे, इसका निकाल दे, तो क्या आप दोबारा ये रिस्क लें? क्या दोबारा आप जाएं? और अगेन अब जो उसकी बातें हैं, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हैप्पी एंडिंग होगी एंड एवरीथिंग, लेकिन उसकी जो बातें हैं, अब जो उसने माँ वाली बात बोली है, मुझे तो लगता है वो भी एक बहुत बड़ा साइन है फॉर अ गर्ल और फॉर अ वुमन टू नो कि यार यहाँ पे चीजें स्टेबल नहीं है, ये तो जरा सा कुछ होगा, ही विल थिंक अबाउट टेकिंग मी आउट ऑफ लाइफ, के मेरी माँ की वजह से एंड ऑल दैट। yes. Yes, the drama is actually at least making me think about a lot of things. Actually, to make it very unromantic and very practical, if I were in Aisha's place,
And I would, well, A, you would think 10 times before you go back. B, if you had children, you would think about going back. C, if you did, you would say, पहले ये घर मेरे नाम पर करो या 50-50 करो, because you cannot throw me out of this house again. This is अच्छा, my house as मुझे well. नहीं लगता कि मैं तो नहीं बोलती घर वो करने का, बिकॉज ये तो No, because you can. I mean, I just feel, how can anyone think कि अच्छा ठीक है, because he goes off at any point. अगर You can, like you said. घर नाम कराना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन आपको इज्जत, रिस्पेक्ट और आपको मोहब्बत नहीं दे सकता है। मैं यही तो कह रही हूँ, going the unpractical, the practical way, the unromantic way. I would say that this exactly going back to the conversation we had कि जब एक लड़की की डिवोर्स हो जाती है तो क्या होता है कि एटलीस्ट आप अपने बेसिस कवर रखें, उसके बाद मोहब्बत आनी है नहीं आनी है, लेकिन आयशा ने तो छोड़ा ही इसलिए बिकॉज शी वांटेड हिम टू लव हर एंड यू नो ही डिडंट। और दूसरी बात ये कि coming down to the basics of this drama is the lack of communication and the misunderstanding. हर बार वो लोग बीच की बात तक छोड़ के चले जाते हैं। डाइवोर्स की बात तुमने की, फिर तुमने नहीं समझा कि वो तुमसे क्या आगे कहना चाह रहा है, तुमने पूरी बात नहीं सुनी, तुमने उसकी दोस्त के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी, या तुम शादी से साड़ी को संभालते हुए बाहर चली गई, वो तुम्हें कह रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक these people are not talking to each other. For me, this is the biggest masla of this whole thing, the lack of communication and misunderstanding. Every couple needs to sit down and talk about things and find solutions. They are not finding solutions, and they are assuming things. तो मुझे तो ये ज्यादा बड़ा मसला लगता है, more than anything else. And I totally agree with you that yes, communication is a huge problem with them. अच्छा जोया, कुछ नहीं, जोया का तो इतना कुछ नहीं है, बस उसने यही कहा कि मेरा मियाँ बड़ा अच्छा, उसने मुझे और चोरी के पैसों को उसने इस तरह कर दिया। हाँ, बिल्कुल तो... उसका अब मुझे कुछ ग्रेनेस नहीं नजर आ रही, उसके कैरेक्टर में बहुत ज्यादा ब्लैक कर दिया उसका कैरेक्टर। तो थोड़ा सा तो अपनी बहनों के लिए थोड़ा तो उसको होना चाहिए, बट वो जली को of her mother. No, she's a reflection of her mother. She's manipulative, selfish and materialistic, so वो अपनी माँ की कॉपी है। I liked Banu and Aisha's conversation. I liked the way Banu told her, although I would have said कि वो उसने कहा कि तुम्हें जरा सा भी कुछ नजर आ रहा है तुम चली जाओ, अम्मा तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगी। एंड इट वाज काइंड ऑफ सैड आल्सो दैट बानो का एडवाइस, और हम सबका शायद वहीं से आता है जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड क्योंकि बानो का अपना अनफुलफिल्ड लव स्टोरी थी या कहानी नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि आयशा चाहे जो भी फ्लॉज हो उसके साथ वो एटलीस्ट चली जाए, बिकॉज देयर इज अ होप कि वो आदमी वो कहती है कि मुझे लग रहा है दैट ही डज लव यू एंड आई सी दैट इन यू, सो ट्राई टू मेक इट वर्क। But it was a very nice conversation. जिस तरह उन्होंने रात को उसने कहा कि वो भी आई हुई थी वहां एंड वो उसके साथ आई थी, तो मुझे वो कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी जो दो बहनों के बीच में होती है कॉन्वर्सेशन रात को। For me, Banu's character is like not used properly. I mean, yeah, so मुझे लगता है उसमें ज्यादा कुछ और हो सकता था। और को बिल्कुल, I wanted Mr. Fahad her own story. I feel that she should not have been just moving a thing to move emotions or communication between Basit and Aisha. She should have had her own story. It's a very strong character. Zoya has her own story. So Banu should have had her own story too. You are right. Yeah. And unfortunately, as audiences, sometimes, makers don't realize that we were waiting for her story because her character became so impactful for us. And we are disappointed क्योंकि इसकी कहानी रह गई वहीं कहीं, नहीं गई यार। Okay जी। That is from our side, and I hope आप लोगों को ड्रामा रिव्यू अच्छे लगे हों। कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।